बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन टोटल? अच्छा, डोंट नो एग्जैक्ट नंबर. ओके, फेयर इनफ. So what I got to know, you already have read vector and kinematics so far in physics. Am I right? Tell me yes or no. नहीं, no sir. राव में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक फिजिक्स में? कौन कौन सा चैप्टर मुझे बताइए, नाम बोलिए. बेसिक मैथ, वेक्टर, वेक्टर और बेसिक मैथ पढ़ा है आपने, and kinematics just started. Fair enough. So vector has been done. Vector is left. Left means what? चलो छोड़ो, मैं कुछ बता देता हूँ आपको. ठीक है. We have just started our batch. Who has written? We have just started our batch. Vector is mostly left. Kinematics just started. Vector was just started. कैसे बोल रहे हो? Vector started. Kinematics finish क्या हुआ? सब start हुआ. चलो कोई नहीं. Anyway, मैं वेक्टर से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बहुत. बट वेक्टर से पहले there is a term we call it as physical quantity. क्या होता है, कौन बताएगा? फिजिकल क्वांटिटी क्लास 9 10th में पढ़े होगे. किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? एनी आइडिया? बोलो तो सही, इंटरेक्ट तो करो, अदरवाइज क्या मैं भाषण देता रहूंगा क्या? फिजिकल क्वांटिटी क्लास 8 9 10th में ये वर्ड मिला होगा ना. किसको कहते हैं बताइए? बोलो, फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? सर स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर वेक्टर तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप हो गए. फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? समथिंग वी कैन मेजर. हाँ, अब आए, थोड़ा बहुत सही कह रहे हो. समथिंग We can measure with a proper scale. So anything that can be measured is called a physical quantity. ऐसा कुछ 9th 10th में पढ़ते थे. So the quantities that can be measured. The quantity that can be measured. तो कॉमन सेंस से सोचो, अगर किसी भी चीज को हम मेजर करेंगे तो उसके साथ एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगा ना. जैसे हम लोग अगर कहें किसी ऑब्जेक्ट का मास 25 kg है, तो इसमें ये जो केजी वाला वर्ड है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है.
isn't it? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और ये जो 25 है ये इसका मैग्नीट्यूड है. So any quantities that can be measured, उसको हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ऐसा अगर डेफिनेशन बनाया गया है, it means there must exist some quantities which cannot be measured. ऐसा जरूर होगा, अदरवाइज ऐसा डेफिनेशन बनाने की क्या जरूरत थी? Are you getting my point? What I am trying to say? If we are defining something as a physical quantity which can be measured, it means there must exist some quantities that cannot be measured. Otherwise, if everything can be measured, in that case, we need not require to define a particular set of quantity called physical quantity, isn't it? तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा चीज है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं? बोलो. बोल तो सही. कुछ डरो नहीं, साइंस पढ़ने में मतलब ऐसे डरते नहीं है, एकदम खुल के पढ़ो, एकदम खुल के, जो मन में आए पूछ लो, कुछ नहीं होता. When unless you don't start asking question ना, you will not learn anything. रटना एक अलग चीज है. हाँ, someone has written grains of sand. No, grains of sand is not something which cannot be measured. It can be measured. It may take time. It may take time. So whenever I say anything that cannot be measured means someone has written infinity. Infinity is not a physical quantity at all. Infinity is something which is not defined. सुनो, तुम लोग समझे नहीं. चलो, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ आज कितने हैप्पी हो, तो क्या तुम कह सकते हो कि आज मैं 10 यूनिट हैप्पी हूँ, 20 यूनिट हैप्पी हूँ, 30 यूनिट हैप्पी हूँ? Does it make any sense? Rather you will say आज मैं बहुत हैप्पी हूँ या आज मैं कल से ज्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा कुछ बोलोगे? या मैं पूछूं तुम कितने दुखी हो, तो बोलोगे आज मैं बहुत दुखी हूँ. But it doesn't make a sense that I will say today I am 30 unit happy या आज मैं 50 unit दुखी हूँ. इसका कोई मतलब नहीं है. So these kind of feelings, emotional feelings, cannot be quantified. And since these emotional feelings cannot be quantified, we will not categorize it as a physical quantity. वो physical quantity नहीं होगा. So science, whether it is physics, chemistry or anything else, science deals with physical quantity only. जिसको measure कर सके, जिसको quantify कर सके, जिसको कुछ unit दे सके, तभी तो उसके ऊपर कुछ mathematics लगा के we can find out some meaning out of it. Am I clear to you up till now? Am I clear to you up till now? So broadly, physical quantities are those which can be quantified, which can be measured, and those physical quantities which cannot be quantified, which cannot be measured, they were something which we don't call as physical quantity और उसको साइंस में हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं. अब ये फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक को कहते हैं वेक्टर्स और दूसरे को कहते हैं स्केलर. वेक्टर किसको कहते हैं? कौन बताएगा वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करे. अच्छा, सो जस ने बताया मुझे कि वेक्टर के लिए तीन कंडीशन है. इट शुड हैव मैग्नीट्यूड. सो एज आई सेड, any physical quantities are those which can be measured.
So if anything is being measured, it means it must have magnitude. तो magnitude तो होगा ही, whether it is vector or whether it is scalar. तो magnitude होगा. दूसरा, वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा और तीसरा इसने कहा जो वेक्टर के लॉ को ओबे करे, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करे. तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा कि उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करता है, तभी हम लोग उसको उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोल पाएंगे. इसका ये मतलब नहीं होता है कि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है. इसका ये मतलब नहीं है. स्केलर के पास भी डायरेक्शन हो सकता है, बट वो डायरेक्शन या तो इल-डिफाइंड होगा या वो डायरेक्शन एट अ टाइम मोर देन वन होगा. सो स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होगा, वो पक्का है. डायरेक्शन के केस में दो बातें हो सकती है, या तो उसका डायरेक्शन इल-डिफाइंड है. इल-डिफाइंड का मतलब एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में है, टाइम के साथ रैंडमली टाइम और पोजीशन एक ही है बट चेंज करता जाता है, तो हम लोग कहते हैं इल-डिफाइंड है. तो डायरेक्शन या तो इल-डिफाइंड हो या डायरेक्शन एब्सेंट. इन दोनों ही केस में वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कहलाएगी. बट इट डजंट मीन दैट ऑल स्केलर क्वांटिटीज विल नॉट हैव डायरेक्शन. ऐसा नहीं है. ये 9th-10th में दिमाग में बैठ जाता था हम लोगों के कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं. आगे चल के इस पर्टिकुलर 11th और 12th में आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है, बट स्केलर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो स्केलर और दूसरा वो स्केलर जिसमें की डायरेक्शन होता है, उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं और टेंसर का अपना एक अलग अलजेब्रा होता है. ये 11th-12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं लिखता. हाँ, जस्ट एक लाइन लिख देता हूँ कि स्केलर्स विद डायरेक्शन, इसको हम लोग टेंसर कहते हैं. तो टेंसर्स आर नथिंग बट स्केलर विद डायरेक्शन. बट टेंसर का अलजेब्रा हम लोगों को अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है. सिर्फ नाम जान के रखो कि टेंसर किसको कहते हैं. अब एक आध एग्जांपल बताता हूँ जिसमें फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है क्योंकि हम लोग एमीटर से मेजर करते हैं कि 5 एम्पियर का करंट है या 20 एम्पियर का करंट है या 30 एम्पियर का करंट है, तो हम लोग मेजर तो करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड है. एट द सेम टाइम अगर हमारे वायर में करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी है, बट डिस्पाइट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. द रीजन इज, सपोज ये एक वायर है जिसमें मान लो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है. ये एक वायर है जो इसी जंक्शन पर आया, इसमें मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट गया और इसमें 3 एम्पियर का करंट गया एक ही जंक्शन पर. कहने का मतलब ये है, सपोज ये एक जंक्शन है, इसमें से इधर से 2 एम्पियर का करंट आया और लेट्स से इधर कहीं से 3 एम्पियर का करंट आया. तो इस जंक्शन से जो तीसरा वायर निकलेगा, इस वायर से 5 एम्पियर का ही करंट आएगा, 3 + 2, irrespective of orientation of these two 3 and 2 amperes. It means ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है. इसमें 3 + 2 हमेशा 5 होता है. आई बात समझ में? Had it been vector, in that case this 3 and this 2 all together can make another physical quantity whose magnitude will vary from 1 to 5. हमेशा 5 ही होगा, जरूरी नहीं है. जैसे मान लो मुझे कोई एक आदमी 2 न्यूटन के फोर्स से उधर पुल कर रहा है, एक दूसरा आदमी 3 न्यूटन के फोर्स से इधर पुल कर
मेरे ऊपर तो 3 - 2 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मींस I am being acted upon two forces, 2 Newton and 3 Newton, but the resultant force acting on me is now 1 Newton just because these two forces are in opposite direction. यही अगर कोई मुझे 3 न्यूटन से पुश करे और दूसरा 2 न्यूटन से पुश करे, इस केस में 3 और 2 मिलके 5 भी हो सकता है। तो वेक्टर के केस में क्या है, डिपेंड करता है कि दोनों क्वांटिटी का डायरेक्शन कैसा है, इट्स रिजल्टेंट कैन हैव अदर वैल्यू, बट इन नॉर्मल अलजेब्रा 2 + 3 will always equal to 5. So coming back to the example of electric current, although this electric current has both magnitude and direction, but since it is following normal algebra, not the vector algebra, that's why electric current is a scalar quantity. Am I clear to everyone, or do I need more to explain? बोलो बोलो, ऐसे शांति से मतलब सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर सर। साइंस नहीं सीख पाओगे फिर। पक्का? यस हाँ सर। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसमें कि मैग्नीट्यूड, वो सब आप जानते हो, नया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वही फिजिकल क्वांटिटी जो कहीं ना कहीं 9th 10th में आप पढ़ चुके हो, उसी में एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बोर्ड को इरेज कर दो, लिख लिया सबने, या लिखने को 2 मिनट चाहिए तो बोलो। सर 2 मिनट चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट के बाद फिर आगे करता हूँ जल्दी से। Done. Shall I erase the board? यस सर, डन। ठीक। अब तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि हर वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए, इस पूरे चैप्टर में हमारा पर्पस है इसी वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ना। अलजेब्रा क्या होता है, तो नॉर्मल अलजेब्रा क्या होता है, नॉर्मल अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा के भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेक्टर अलजेब्रा में भी एडिशन होता है, वेक्टर अलजेब्रा में भी सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है, बट वेक्टर अलजेब्रा में डिवीजन डिफाइन नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐसे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ऑफ 2 वेक्टर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज
वेक्टर एडिशन। ये सब तुम लोग पढ़ चुके होंगे पहले से। देखो एकदम, मुझे वो बड़ी बड़ी बातें नहीं, एकदम सीधी सीधी सी बात समझो, एकदम सिंपल वे में इस साइंस को समझने की कोशिश करो। कोई आदमी यहां से यहां गया, कोई आदमी कहां से कहां गया, यहां से यहां, ए से बी गया, और वो आदमी फिर बी से सी चला गया। तो फाइनली अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा वो ए से सी गया। कॉमन सेंस है ना, ये तो कॉमन सेंस है। यस सर। रॉकेट साइंस नहीं है। कोई आदमी ए से बी गया और कोई आदमी फिर बी से सी चला गया, तो मेरे लिए फाइनली वो तो ए से सी गया। मीन ये जो ए टू सी वाला रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन इसी दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसी को हम a प्लस बी लिख सकते हैं। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है कि नहीं? Yes, sir. तो इसी कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अदरवाइज मेरे लैंग्वेज में बोलोगे तो कोई रूल नहीं, कोई फिजिक्स नहीं, कॉमन सेंस है। अगर कोई आदमी ए से बी गया, बी से सी गया, तो इसका मतलब है ए से सी गया, मींस ए टू बी प्लस बी टू सी इज नथिंग बट ए टू सी, एज सिंपल एज दिस। यस सर। सबको यस सर। अब देखो कहोगे कि सर ये तो क्या फिजिक्स के नाम पे आप क्या इजी बताते हो, आप इसी को फिजिक्स बना देते हैं। इसी में अगर वही बड़े बड़े कीवर्ड्स यूज करें, कुछ मतलब इसको कॉम्प्लेक्स बना दें तो ये फिजिक्स कहलाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in same order, then the third side taken in opposite order will represent resultant of these two. This is called triangle law of vector addition. तो अब ये साउंड करता है जैसे कोई एक अच्छा सा फिजिक्स हो गया, अदरवाइज कॉमन सेंस है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कॉमन सेंस का नाम हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आप खुद रियलाइज कर लिए कि कॉमन सेंस है, अदरवाइज मैं रूल लिखा था समझना बेगाना कोई मतलब नहीं। बट हाँ, फिजिक्स के लैंग्वेज में इस कॉमन सेंस का नाम हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो जरा सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख के ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर इस लॉ का स्टेटमेंट मैं लिखा देता हूँ, सच दैट आपको लगे कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो मेरे लैंग्वेज में लगेगा कॉमन सेंस पढ़ रहे हैं। जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। Done, sir. हो गया? स्टेटमेंट लिखिए। If two vectors can be represented by adjacent sides of a triangle taken in order, adjacent sides of a triangle taken in order, then
third side of the triangle taken in opposite order then third side of the triangle taken in opposite order will represent resultant of these two. Will represent resultant of these two. Full stop. ये समझ में आया? Taken in order और taken in opposite order. सर हाँ सर इसमें एंगल नहीं मैटर करेगा ना? एंगल आते हैं ना, एंगल तो मैं बताया ही नहीं अभी. इसमें एंगल का, इसमें तो अभी तो एंगल का कोई रोल नहीं है. किसी भी एंगल पर जाए, ये इधर जाए उधर जाए, बट ए से बी गया और बी से सी गया, मतलब लाइन ज्वाइनिंग ए टू सी, इसी दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना. अब एंगल क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, उसका वो देखेंगे, वो अभी थोड़ी देर 2 मिनट के बाद देखेंगे. लेकिन ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इरेज करो. अब देखो. Yes, sir. अब इसका एंगल क्या होगा, कितना होगा, वो सब तो देखते रहेंगे. एक और कॉमन सेंस देखो, एक और कॉमन सेंस देखो. अगर कोई कैसे भी ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर ए आ गया, मतलब कहीं नहीं गया, है ना. Yes, sir. इसका मतलब कहीं नहीं गया. तो इस कॉमन सेंस को ऐसा कह सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर को हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट करें टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उस केस में रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा. ये कॉमन सेंस है. ये कॉमन सेंस समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इस कॉमन सेंस को नोट में लिख लो. If three vectors can be represented by three sides of a triangle taken in same order. Same order means A to B, B to C, C to A. Then resultant of these three vectors will always be 0. ठीक है? देखिए स्टेटमेंट लिखाता हूँ, देखिए. If three vectors can be represented by three adjacent three sides of a triangle taken in same order. Sir, can you repeat? If three vectors can be represented by three sides of a triangle taken in same order, then resultant of
these three will always be 0. ठीक है? यस सर। अब मैंने जितना सिखाया उतने ही के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो न्यूमेरिकल के लिए अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें जो क्वेश्चन बताता हूं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। जो क्वेश्चन बोलता हूं उसको जरा सा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है? यस सर। ठीक, और व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है? दोनों दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो 22 आप लोग कीजिए, नहीं होगा फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे कर दूंगा तो देखेंगे।
सर सी आंसर आया। यस सर, सी आंसर है। आया कुछ आंसर? सी 6 न्यूटन। सी शायद यस सर सही है। सब कहा गया? क्या बताऊं मैं? सर बताओ ना प्लीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स को मैं x पकड़ लेता हूं और दूसरे का मैग्नीट्यूड y पकड़ लेता हूं, तो x प्लस y 16 होगा। यही मतलब है इस इक्वेशन का। मैंने एक फोर्स का मैग्नीट्यूड x ले लिया और दूसरे का मैग्नीट्यूड y ले लिया, तो x प्लस y की वैल्यू 16 है। ठीक है। The resultant of these forces is perpendicular to a smaller force. तो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है, तो कोई एक मान लो ये स्मॉलेस्ट है, तो कहता है कि रिजल्टेंट इस स्मॉलेस्ट के परपेंडिकुलर है। मतलब ये मेरा रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट अगर होगा, इसका मतलब है कि दूसरा वाला फोर्स ऐसा होगा, ये x होगा और ये y होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा। यही मतलब है ट्रायंगल लॉ से। Yes, This sir. vector plus this vector is line joining from here to here. यस सर, पक्का? पक्का। तो ये रिजल्टेंट कितना है? 8 है। मतलब इस r की वैल्यू 8 के बराबर है। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे x ढूंढना है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर दीजिए। y की जगह 16 माइनस एक्स यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 स्क्वायर हो गया 64। 64 इज इक्वल टू माइनस 32x प्लस 256। इसको इधर ले आओ, तो 32x इज 256 माइनस 64। तो शायद ये 192 हो गया। Yes, sir. x की वैल्यू कितनी हो गई? 192 अपॉन 32। कितना होगा? 6 होगा शायद। Yes. तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया 6 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। सबका हो गया? आगे बढ़ो। इरेज कर दो, बोलिए। हाँ सर।
एक चीज ध्यान से देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता, कोई दूसरा ट्रायंगल बन जाता तो कैलकुलेट करना मुश्किल था, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से मुझे एक रिलेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कोई भी वेक्टर कोई भी एंगल हो, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्टेंट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये सब देखते हैं। बट हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो ज्योमेट्री से ही सॉल्व कर पाए हम लोग। एक और करते हैं ज्योमेट्री से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, रुकिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं जो ज्योमेट्री से ही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, Sir, 30 degree. बोलो। सर हाँ, 30 sir. डिग्री 30 degree. रॉन्ग है, रॉन्ग है। और कोई? सर इज आंसर 60 डिग्री? नहीं, सर 30 डिग्री। नहीं,
सर 45 डिग्री। नहीं, अरे कुछ कुछ क्या रैंडम बोल रहे हो, जो बन नहीं आ रहा है। सर 30 आ रहा है मुझे तो। हाँ 30 वाला कम से कम कुछ तो सही किया है, आंसर गलत है अलग बात है, बट कुछ तो सही किया है। तुम लोग सब किस बोर्ड के हो? सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, क्या सीन है? ICSC। सर आईसीएसई से? नहीं, SSC। एसएससी से भी है। एसएससी से भी है? यस सर। सब कांदीवली में रहते हो? टीपी भाटिया में एडमिशन लेना है तुम लोगों को? हाँ हाँ। सर। सही यार, ठीक है, बढ़िया। और क्या सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हो? हाँ सर। आईआईटी जाना है? हाँ सर। क्या करेगा वहाँ? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियर बनेगा? क्या होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में? प्लेन के पार्ट्स का इंजीनियरिंग होता है वो। That- ये सब नाम है, सुनने में ऐसा लगता है, होता होता कुछ वो नहीं। सब बीटेक ही है। हाँ, जैसे गुलाब जामुन है, नाम है गुलाब और जामुन, दोनों में से कुछ नहीं रहता है उसमें। ये सब हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं। खैर कोई नहीं, बढ़िया, वेरी गुड। और क्या होता है आईआईटी में? क्या करेगा आईआईटी जाके? बाकी जनता क्या करोगे आईआईटी जाके? अरे बोल तो सही। उसके बाद हाँ, एमबीए के लिए जाना है। उसके बाद तो आईआईटी पहले जाना है, फिर एमबीए। एमबीए के लिए जाना है, हाँ ऐसा? अरे वाह यार, तो बिना आईआईटी जाए भी एमबीए चले जाएगा, इसमें क्या है? सर, लेकिन आईआईटी की बात अलग है ना थोड़ी। क्या अलग है बात, वही पूछ रहा हूँ मैं। थोड़ा नाम का फर्क पड़ता है बस। क्या आईआईटी का नाम ज्यादा है ऐसा? हाँ, पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन थोड़ा नाम का ही सिर्फ फर्क पड़ता है सब जगह। अच्छा, मतलब लोग बाग बोले कि आईआईटी से पढ़ा है मतलब कुछ तो होगा ही ना, ऐसा? ऐसा ही कुछ मतलब। हाँ, ऐसा ही कुछ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम जानते हैं तुम लोग? पहले सुना था कभी? नहीं सर। नहीं सुना था? नहीं सर। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। I passed out from IIT Kharagpur in 2006. उसके बाद मैंने भी बहुत मजे किए लाइफ में। उसके बाद फिर मैं जर्मनी चला गया, वहाँ रहा बहुत दिनों तक, फिर इंडिया आया, इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत दिनों तक काम किया। फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, तो तब से 2008 से लेके अभी तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम लोग भी आईआईटी पहुंचो, बहुत मजेदार जगह है, बहुत मजा आता है वहाँ पर। आईआईटी से पास होने के बाद कुछ भी करोगे लोग बाग अच्छा ही समझेंगे कि अच्छा ही कर रहा है। और आईआईटी से यस पास सर। आउट नहीं हो और कितने भी होशियार हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये प्रूव करने में कि तुम होशियार हो। और आईआईटी से पास आउट हो तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम होशियार हो, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग तुमको समझेंगे ये होशियार तो होगा ही। लोग का मतलब, whenever I say लोग means not general people, whenever I say लोग समझेंगे means industry, whichever industry you get into, तुम फाइनेंशियल सेक्टर में जाओ, तुम कुछ हॉबी परसू करो, जो भी करना है, लोगों का तुम्हारे ऊपर देखने का एक नजरिया बदल जाएगा। आईआईटी इंजीनियर बनने नहीं जाते हैं, ये सब फालतू बात है। जितने बड़े बड़े आईआईटीएंस के नाम सुने हो ना, नोबडी इज डूइंग ब्लडी इंजीनियरिंग। चेतन भगत देखो, कोई इंजीनियरिंग करता है? आईआईटी आईआईएम दोनों गया, करता है क्या? नहीं सर। नाम सुना है चेतन भगत का? हाँ सुना है सर, वो सर इंजीनियरिंग के हो तो बुक भी ऑथर बराबर है नहीं ना। लिखता। आईआईटी आईआईएम दोनों गया। अरविंद केजरीवाल को देख लो, गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर को देख लो, कितने एग्जाम्पल बता दूं मैं। क्रिकेट का कमेंटेटर हर्षा बोगले, वो आईआईटी का नहीं, वो आईआईएम का पास आउट है वैसे, उसको देख लो। तो ये सब जो बड़े बड़े नाम है ना, आईआईटी आईआईएम, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, दे आर द प्लेस which will give you the required branding.
वहां का ब्रांड टैग लग गया ना तुम पर, फिर तुम कुछ भी करो लोग तुम्हें अच्छा ही समझेंगे, whether it is politics, whether it is storytelling, whether it is story writing. आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे, इससे पहले आरबीआई के गवर्नर सुब्बा राव थे। फाइनेंशियल सेक्टर में देखो धूम मचा रखा है। छिछोरे मूवी का डायरेक्टर वो क्या नाम है उसका? नितेश तिवारी। नितेश तिवारी, वो भी आईआईटी बॉम्बे का पास आउट है। कट्टी बट्टी जिसने लिखी है अंशु सिन्हल, वो मेरा दोस्त है, मैथ पढ़ाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन में वरुण ग्रोवर को देख लो। बहुत सारे लोग हैं हर सेक्टर में, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई हर जगह। तो लोग, ऐसे लोगों को चांस कोई देता नहीं है, ये लोग खुद ले लेते हैं, क्योंकि इनके पीछे इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है कि लोग बाग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाएगा तो मचा के रख देगा। अच्छा बुरा वो तो वक्त डिसाइड करेगा, बट वेदर इट इज पॉलिटिक्स, वेदर इट इज राइटिंग, वेदर इट इज क्रिएटिव समथिंग, वेदर इट इज टीचिंग, वेदर इट इज फाइनेंशियल सेक्टर, और इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही जो कोई कभी नहीं करता। चलो मैं बहुत कहानी सुनाने लग गया। anyway, क्या बताने वाला? अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हाँ कौन सा नंबर बोला था मैंने? 12 शायद। The resultant of two vectors u and v is perpendicular to the vector u and its magnitude is equal to half the magnitude of v. The angle between u and v is. तो देखो सेम स्टोरी, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही डायग्राम है, कुछ नया नहीं है। ये है u और u के ऊपर परपेंडिकुलर है u और v का रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू v के मैग्नीट्यूड का आधा है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, ये रिजल्टेंट v के मैग्नीट्यूड का आधा है, ऐसा लिखा है। हाँ Yes, सर। sir. तो ट्रायंगल लॉ से यही वाला मेरा v होगा पक्के से। Yes, sir. इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा इज p/h, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दिख रही है। हाँ सर। मतलब हाँ, सर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिख रही है। हाँ, Yes, sir. मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हुआ? 30 degree. नहीं, 60 डिग्री। 150 डिग्री। देखो कैसे, वेक्टर u का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर v का डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये एंगल होगा, ये एंगल नहीं होगा। Okay, towards positive x-axis direction. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। मैं कोई साइंस को पढ़े उतनी बात नहीं आती, कॉमन सेंस। अगर कोई इधर जा रहा है और कोई इधर जा रहा है, तो इन दोनों पाथ के बीच का एंगल ये एंगल होगा ना। ये तो ऐसा हो गया, देखना ध्यान से, कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये एंगल होगा ना। तो ये 30 है तो ये 150 होगा। हाँ सर। तो ये जो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज 150 डिग्री इन दिस पर्टिकुलर केस, ये होगा मेरा एंगल बिटवीन ए एंड बी। Okay, sir. Am I clear to everyone? Yes, sir. सर। आप लोगों ने खुद कहा वेक्टर में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो ये इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा ना। समझे नहीं? u का डायरेक्शन इधर है, v का डायरेक्शन इधर है, तो u और v के बीच का एंगल ये हुआ ना। हाँ सर। हाँ कॉमन सर, सेंस समझा। है। इस कॉमन सेंस को अगर रूल बना देंगे, वैसे तो कॉमन सेंस है, रूल बना देंगे तो ऐसे कह सकते हैं, जब दो वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं तब तो उनके बीच जो एंगल होता है उसको एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन है, तो हेड और टेल ज्वाइन है तब एंगल 30 डिग्री दिख रहा है। बट जब दोनों का हेड एक जगह ज्वाइन होगा उस समय जो एंगल दिखेगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर है। क्लियर? Yes, sir. तो
वैसे तो कॉमन सेंस है, बट अगर मैं इसको रूल के टर्म में कहूँ, मान लो ये कॉमन सेंस नहीं चमके तो रूल के सेंस में कहूँ तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन देयर टेल्स आर जॉइंड एट अ पॉइंट, व्हाटएवर इट कम्स, दिस इज वी कॉल इट एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, isn't it? Okay, sir. सही है. आगे बढ़े, हाँ सर. इसको इरेज करते हैं. नोटबुक में तुम लोग खुद लिख लो या बोलो तो लिखा देता हूँ कि एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे होता है. तो जब टेल टू टेल ज्वाइन होता है तब लाइन के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं. ठीक है, चाहो तो एक लाइन लिख ही देता हूँ नोट्स में, ताकि क्योंकि ये कंफ्यूजन हमेशा होता है. तो नोट में एक लाइन लिख लो खुद से. एंगल बिटवीन वेक्टर्स. जिन लोगों ने राव में ये पढ़ चुके हो, जो लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को राव में पढ़ाया गया होगा वेक्टर, उनको अगर केवल प्रैक्टिस करना है कुछ क्वेश्चंस को, तो ये जो मैंने असाइनमेंट आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये असाइनमेंट तुम लोग जाके ऐप स्टोर पे मेरा एक एंड्रॉयड में ऐप मिलेगा मेरे नाम का, टीच योरसेल्फ करके. तो वहां से कोई ऐड नहीं, कहीं कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों के लिए बहुत दिनों से. आपका नाम रिपीट कर सकते हो? वहां से डाउनलोड कर लेना उस ऐप को, और पूरे फिजिक्स के असाइनमेंट है हर चैप्टर के, हर डिफिकल्टी लेवल वाइज. वहां से जितने भी प्रैक्टिस करने हैं कर सकते हो. सेम वही का पीडीएफ मैंने शेयर किया था. ठीक है, नाम बता देता हूँ. प्ले स्टोर पे जाओगे, टीच योरसेल्फ. जिनका नहीं हुआ है, जो पहली बार कर रहे हो, उनके लिए नहीं है, उनको पढ़ा दूंगा उसके बाद. टीच योरसेल्फ फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई. इतना लिखने की जरूरत नहीं है. टीच योरसेल्फ केवल लिखोगे तो वहां पर ब्लू कलर का एक लोगो आ जाएगा बड़ा सा, वहां पर मेरा नाम फोटो भी दिखाई देगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको वही वाला है. anyway, तो एंगल बिटवीन वेक्टर. तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो उस केस में ये जो एंगल है व्हाटएवर इट कम्स, ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है, रादर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है. तो जो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर. सो याद रखने की, क्योंकि ये गलती हमेशा होती है इस डायग्राम में, लिख लीजिए दिस एंगल थीटा is not angle between vectors, rather this is angle between vectors. तो मैं लैंग्वेज में लिखा हूं, उससे आसान है कि ये कंपैरिजन में हमेशा आपको याद रहेगा. जल्दी से लिख लो. दिस इज नॉट, ये नॉट इंपॉर्टेंट है. नॉट को ऐसे करके, चाहो तो ऐसे क्रॉस कर दो. ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है, ये गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है. ये एंगल बिटवीन वेक्टर है. डायरेक्शन का सेंस देखो. इरेज करो. बोलिए, इरेज करो. हाँ सर. चलो जरा जल्दी से 10 मिनट ध्यान से देखो, क्योंकि मेरी 4 बजे से दूसरी भी क्लास है. ध्यान से देखो, बाद में फिर कॉपी करना. सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये एक दूसरा वेक्टर है बी.
और ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, मतलब ये थीटा हो गया। तो ये जो मेरा होगा लाइन, ये लाइन मेरा ए प्लस बी का होगा। ट्रायंगल लॉ से अभी यही सीखा था। तो Yes, sir. सपोज हम लोगों को ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है और एंगल बिटवीन ए एंड बी मालूम है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं। इस ट्रायंगल में अब AC को हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना दे। तो C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, CM। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ACM, इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. AM को फिर हम लिख सकते हैं AB प्लस BM। लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. लेट इट बी इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल CBM में देखो, ट्रायंगल CBM में अगर देखोगे तो जो cos थीटा होगा B by H that is BM upon BC होगा, और जो sin थीटा होगा P by H that is CM upon BC। तो यहां से मुझे BM मिलेगा BC cos थीटा, और यहां से मुझे CM मिलेगा BC sin थीटा। ऐसा मिलेगा। Yes, sir. समझा. तो अब क्या करूं, मेरा पर्पस तो AC निकालना है, तो BM की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और CM की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So from these three equations हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा लिख पाएंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BM दैट इज BC cos थीटा का स्क्वायर प्लस CM दैट इज BC sin थीटा का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB into BC into cos theta plus BC square cos square theta plus BC square sin square theta। ऐसा लिख सकते हैं। cos square plus sin square 1 होता है, होता है। Yes, sir. इन दोनों में BC स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB into BC into cos थीटा। ऐसा होगा। Yes, sir. तो AC is nothing but resultant of A and B। तो AC को हम लिख सकते हैं mod of A plus B का स्क्वायर। AB is magnitude of A, so mod of A का स्क्वायर। BC is magnitude of B, so mod of B का स्क्वायर plus twice of mod A mod B cos theta। So
फाइनली मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम इज अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ये इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला मैंने बताया जो आपको याद रखना जरूरी है और सबसे ज्यादा यूज भी होगा इस चैप्टर में यही फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यूज कब करेंगे? जब दो वेक्टर और उन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है, तब उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। क्लियर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर फॉर्मूला में लास्ट का दिख रहा नहीं है। क्या बोलो, क्या नहीं दिख रहा है? लास्ट का वो अपने बॉक्स किया है ना। 2ab cos थीटा। हम्म, समझ आ रहा है तुम लोगों को मैंने जो कुछ भी पढ़ाया? हाँ सर। पक्का या ऐसे ही हाँ कर रहे हो? नहीं सर, पक्का। चलो बधाई हो। सर आज का कुछ असाइनमेंट रहेगा? चाहिए तो दे देंगे, इसमें क्या है। बट अभी थोड़ा सा ही हुआ है, रुक जाओ अगली क्लास में। ओके सर।
हो गया? यस सर हाँ डन। सर। अब ये जो a प्लस बी वेक्टर बना, ये वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन को क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर a से अल्फा एंगल पर है। यस सर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन के लिए देखिए, इस ट्रायंगल ACM में हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू CM अपॉन AM। तो CM is nothing but BC sin theta and AM is nothing but AB plus BC cos theta। That is, this tan alpha is equal to mod B sin theta upon mod A plus mod B cos theta। ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया जो बहुत ज्यादा यूज तो नहीं आता है, क्योंकि ज्योमेट्री से भी सॉल्व हो ही जाते हैं सारे क्वेश्चन, बट फिर भी ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया जो हम लोगों को ये बताता है कि रिजल्टेंट a प्लस बी वेक्टर a से कितना एंगल बनाता है। So here in this particular case we can say this alpha is angle made by a plus b with a। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो इसको भी। इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। तो टाइम नहीं है आज के लिए, इतना ही। जस्ट मैं दो चीज सिखा दूं आपको। आज जो दो क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी आपको, अभी कोई तो करवाया था, यू भी आधा है ऐसा कुछ। हाँ सर। उसको तो मैंने डायग्राम ज्योमेट्री से सॉल्व कराया था। यस सर। अगर मान लो ज्योमेट्री नहीं यूज करते, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो दोनों क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री से सॉल्व किया था विदाउट नोइंग दीज टू फॉर्मूला, those two questions can also be solved using these two formula only without drawing any triangle। कुछ कोशिश करोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। So next class mainly we will be doing questions, and most of the question we will be doing by two methods, one by using formula and other wherever possible we will apply geometry as well। ओके सर। Yes, चलिए। Yes, sir. तो आज के लिए इतना है, बिकॉज एग्जैक्टली 4 o'clock में दूसरी क्लास है। अगली वीक से इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे, और बाय द एंड ऑफ द डे इसका यूट्यूब का रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा इस लेक्चर का। जिसका कहीं छूट वूट गया है वो अपना नोट बना लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू सर।